Morning students. In the previous lecture we have done Faraday's first law. Today we will do Faraday's second law. According to this law, when the solutions are connected in series, then mass of metal deposited over the electrode is directly proportional to their equivalent masses. Mathematically, mass of metal deposited is directly proportional to equivalent masses. फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू जेड आई टी. जेड क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट. इसकी वैल्यू क्या होती है? E/96,500. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट ई कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट मीन्स मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी. W इज इक्वल टू जेड की जगह E/96,500 आई टी. क्वेश्चन: calculate the weight of copper deposited when 2 into 10 to the power 3 coulomb means this is equal to Q I into T Q of charge is passed through copper sulfate solution. कॉपर का वेट दिया हुआ है 63.5. here Q is given. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ई कैसे निकालेंगे? 63.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब ब्रेक करेगा तो कॉपर +2 में करेगा तो डिवाइड बाय 2. W बाई ई इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96,500. आई इंटू टी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 3. ई 63.5 डिवाइड बाई 2 96,500. आंसर विल बी वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी 0.658. I am sending you this assignment also related to Faraday's law. You have to solve this. Next is resistance. Resistance is the opposition offered to the flow of current, means resistance offered to the flow of current. It depends on two factors. Resistance directly proportional to length of conductor. Resistance is inversely proportional to area of cross section. Combining these two we get resistance is directly proportional to L upon A. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वी विल गेट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. रो क्या है? रेजिस्टिविटी. रो इज रेजिस्टिविटी एंड इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज इक्वल या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G. G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम थे तो कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे? ओम इनवर्स और सीमेन. नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय K. रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. K, it is denoted by K is equal to 1 upon rho. Here from value of rho is equal to 1 upon R into L upon A. 1 upon R is conductance, so K is equal to G L upon A. If L is equal to 1 centimeter, area is equal to 1 centimeter square, so K is equal to G means conductivity is equal to conductance when area of cross section is 1 centimeter square and length of conductor is 1 centimeter. The units will be ohm inverse, centimeter inverse. Next is factors affecting electrolytic conductance. An electrolyte is a substance. electrolyte dissociate होता है solution में तो ions मिलते हैं, conduct करता है electricity. अब there are some factors which affect electrolytic conductance. Number 1, nature of electrolyte. electrolyte का nature या interionic attractions means सोल्यूट और सोल्यूट में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर अट्रैक्शन कम होगी तो ग्रेटर विल बी मूवमेंट ऑफ आयंस. आयन ज़्यादा मूव करेंगे और जब आयंस मूव ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा. सेकेंड, सॉल्वेशन ऑफ आयंस. अगर हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन थी, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिज़ोल्व किया है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी. इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो सॉल्वेशन क्या होगी? ज़्यादा, तो मूवमेंट क्या होगी? कम. लोअर विल बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. Number 3, viscosity of solvent. This is solute-solvent interaction, solute interaction. This is solvent-solvent interaction. अगर solvent-solvent interaction ज़्यादा होगी, larger the solvent-solvent interactions, larger the viscosity. उतना ज़्यादा viscous होगा, उतनी ही movement क्या होगी?
कम होगी आयंस की तो लेसर विल बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. एज टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन राइजेस, solute इंटरेक्शन डिक्रीजेस. इंटरेक्शन डिक्रीज करेगी, मूवमेंट ऑफ आयन विल बी मोर, कंडक्टेंस इंक्रीजेस. Next is molar conductance. What is molar conductance? It is denoted by lambda m. It is defined as conductance offered by that volume which contains 1 mole of electrolyte. And the formula is lambda m is equal to K. K is conductivity. K into 1000 divided by m. Units will be S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस. के यूनिट्स क्या होते हैं? एस सेंटीमीटर इनवर्स और मोलैरिटी के मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. सो हेयर वी गेट एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 या फिर एस की जगह ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है? मोलर कंडक्टेंस में मोलैरिटी था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी है. It is defined as conductance offered by that volume which contains gram equivalent of the substance. Means gram equivalent of substance ने कितनी कंडक्टेंस ऑफर की. तो लैम्डा इक्वलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई एन. इसके यूनिट्स में डिफरेंस क्या आएगा? वहाँ मोलैरिटी था, यहाँ पर क्या आएगा? इक्वलेंट.